Good morning to all of you, class. Good morning, ma'am. Good Good morning. morning, ma'am. Morning, ma'am. ठीक है क्लास, एक क्वेश्चन है सबके लिए। आप बताना, What can happen? What can happen if a fire gets out of control? If a fire gets out of control. Hello. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Damage the property. Yes, Question ma'am. say, what can happen if a fire gets out of control? It Ma'am, becomes so dangerous it and the property. Ma'am, damage to it need property to be ma'am, it and जोर need loss से to बोलो, be जोर से बोलो। extinguished. All things Ma'am, are it ma'am, it need to be extinguished. yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello. What can happen if a fire gets out of control? It ma'am, becomes it dangerous and damage the damage our property. properties. और एक बार It बताओ। and it need It becomes dangerous and damage the Damage the property. property. ma'am, it need to be extinguished. Yes, बेटा। Why is it important to stop a fire? Ma'am, if we did not stop a fire, so it damaged the all property. Very good. Today we will learn about ways of extinguishing fire. आज हम देखेंगे एक्सटिंग्विशिंग फायर के बारे में पढ़ना है हमें। कितना रास्ता है हम आग को बुझाने के लिए, ठीक है। कैसे कैसे हम आग को बुझा सकते हैं। तो एक्सटिंग्विशिंग मीन्स क्या है? बुझाना। हाँ, बुझाना, ठीक है, आग बुझाएगा। ठीक है, ये पैराग्राफ दिख रहा है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये Yes, पैराग्राफ पढ़ो। मैं पढ़ूं? पढ़ो मैं बोल शिवानी बेटा, अभी पढ़- सारे बच्चे पढ़ने लग जाएंगे। पूर्णिमा। तो एक बच्चा Shivani Priyanshi. प्रियंशी, and Shivani and Radha. Ma'am, Shivani. इतने सारे बच्चे हैं। ठीक है, मैम थैंक यू सो पूर्णिमा। मच। सब एक्साइटमेंट है पढ़ने के लिए, अच्छी बात है। तो उनमें से एक ही बच्चा पढ़ेगा। Shivani. शिवानी हो, पढ़ो। हम ट्रांसलेट मैं कर दूंगी. ठीक है, शिवानी Lesson रीड 3. दिस पैराग्राफ। ट्रांसलेट मैं करूंगी। Yes, ma'am. Extinguish a fire. Fire is a very useful to humans. It is an important source of heat and light. Combustion helps us to cook food, break bricks, run over power plants, mold metals, and obtain metals from ores. However, if a fire gets out of control, it can cause servers, burns, and loss of lives as well as damage to properties. Uncontrolled fires need to be extinguished or put out. We know that for any substance to combust and catch fire, these three conditions are necessary: a combustion substance, oxygen, and obtain ignition temperature. Obtain ignition temperature. Therefore, there are the there are the three base way of extinguish of fire. Cutting off supply oxygen or cutting off supply the supply of oxygen is the most way of extinguishing fire. You may have heard that if a person close catch a fire, he or she should be wrapped in a blanket. There is because blanket cuts off the supply of oxygen and help to extinguish the fire. Similarly, if its sand is thrown or combustible material, it cuts off the supply of oxygen. This is a way to sand buckets
are kept outside firework shops or immediate help. ओके बेटा, रुक जाओ। ठीक है, शिवानी ने रीड किया, तो आप सभी को कुछ समझ में आया या नहीं? हम आया। कुछ समझ में आ गया ना? तो क्या समझ में Yes, आया, ma'am. एक बार बताओ। अनुराधा? कि मैम जैसे फायर को मैम हमें बुझाना चाहिए, अगर नहीं बुझाएंगे तो हमारे मैम प्रॉपर्टी डैमेज कर सकती है, या फिर मैम कुछ भी जैसे। क्या करता है? प्रॉपर्टी डैमेज करता है और क्या करता है? और मैम प्रॉपर्टी डैमेज करता है और मतलब जान ले लेगा बेटा, ठीक है, मर जाएंगे सब। जान के लिए भी ये खतरा। यस मैम, ये हमारे लिए भी खतरा है वैसे। नेक्स्ट मैम उसका धुआं जाएगा फेफड़ों में। यस मैम। we know that for any substance to combust and catch fire, तीन कंडीशन आर नेसेसरी, हमें पता है तीन कंडीशन आवश्यकता है। कुछ एक कंबस्टेबल सब्सटेंस, कुछ एक सब्सटेंस जो क्या करता है, आग पकड़ता है, उसके लिए क्या चाहिए ना, वो सब्सटेंस कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट थिंग वो कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए, नहीं तो हम ऐसे नहीं कर पाएंगे कि मेटल में हम आग लगा के जलाएंगे। मेटल में हाँ कुछ मेटल्स होते हैं जलते हैं, ठीक है, कुछ मेटल्स Yes, होते ma'am. हैं जलते हैं, लेकिन हम अभी बोलेंगे कि आयरन में आग लगा के बस हम खाना पका लेंगे, नहीं हो पाएगा। इज इट पॉसिबल? नहीं। नो मैम। और क्या आवश्यकता है ना, ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन में भी कितना भी कम्बस्टेबल सब्सटेंसेस ले आओ, कितना सूखा पत्तियां ले आओ, लकड़ी ले आओ, आग नहीं लगेगा जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है। और एक क्या है ना, ऑप्टिमम इग्निशन टेम्परेचर, इसका भी क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ऑप्टिमम इग्निशन टेम्परेचर? इग्निशन टेम्परेचर आपको बताया था, ये कि मिनिमम टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में सब्सटेंस नहीं पहुंचता ना कम्बस्टेबल, तब तक उसमें से आग नहीं लगता है, ठीक है। ये तीन चीज इम्पोर्टेंस है कंबशन प्रोसेस में। यस मैम। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारा टॉपिक्स क्या था कि एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर, फायर को हम कैसे बुझाएंगे, ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल जब फायर होता है तो वो नुकसान करता है, ठीक है, उससे हम कैसे बचेंगे। यस मैम। क्या है आपका ना, कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जब हमें पता है कि तीन चीजों की आवश्यकता है, तो वो तीन चीजों को हम क्या करेंगे, दूर करेंगे, हटाएंगे उनको। तो फर्स्ट क्या होगा ना, हमें पता है ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ठीक है, तो हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे, कटिंग ऑफ करेंगे, हटाएंगे, ठीक है। कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स कंबस्टेबल सब्सटेंस में जब आग लग गई है, जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, तो हम क्या करेंगे, जैसे उसके पास और ऑक्सीजन ना पहुंचे और उसका भयंकर रूप और ना बढ़े, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, ऑक्सीजन को, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को किसी भी तरह उसको कट ऑफ करेंगे, ठीक है। तो ये पैराग्राफ पढ़ो और बताओ। पूर्णिमा? Yes, ma'am. read this paragraph. Cutting off the supply of oxygen. Cutting off the supply of oxygen is the most common way of extinguishing fires. ऑक्सीजन की सप्लाई को कटिंग करना जो है सबसे ज्यादा सामान्य तरीका है हमारे आग को बुझाने का। यू मे हैव हियर्ड दैट द पर्सन्स क्लॉथ कैच फायर्स। आप लोगों ने सुना होगा जैसे कि अगर किसी इंसान के कपड़े आग पकड़ लेते हैं, ही और शी शुड बी रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, उसको ब्लैंकेट में लपेटा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ब्लैंकेट ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देती है और हमारी आग बुझाने में सहायता करती है। ऐसे ही अगर रेत को किसी भी कंबस्टेबल ज्वलनशील पदार्थ पे अगर हम लोग फेंकते हैं तो वो सप्लाई कट कर देती है ऑक्सीजन की, क्योंकि जो रेत होती है, बिकॉज सैंड बकेट्स आर केप्ट आउटसाइड फायर शॉप्स फॉर इमीडिएट हेल्प। क्योंकि जो रेत से भरी जो बाल्टियां होती हैं उसको फायर वर्क्स के शॉप के बाहर इसीलिए रखा जाता है कि अगर बाई चांस वो आग भयंकर रूप अपना लेती है तो हम रेत की सहायता से उसे बुझा सके।
क्या होता है ना, रेत पूरा कवर कर देता है कंबस्टेबल सब्सटेंस को। जिसके ऊपर आग लगी है उसके ऊपर जब हम रेत फेंक देंगे, उस एरिया में हम रेत डाल देंगे, तो क्या होगा, रेत पूरी तरीके से उसको कवर करके रखेगा, तो वो ऑक्सीजन कांटेक्ट में आने नहीं देगा। ठीक है, ये है। आप भी देखा भी होगा पेट्रोल पंप के पास में रेत का बॉकेट बिल्कुल वहां पे लटका हुआ रहता है हमेशा। यस मैम। हाँ, तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, कूलिंग द बर्निंग सब्सटेंसेस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। आपको पता है इग्निशन टेम्परेचर में जब कंबस्टेबल सब्सटेंस पहुंचता है तभी उनमें से आग लगती है, हम पहुंचने नहीं देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसको ठंडा करेंगे, पानी डाल देंगे, ये तो कर सकते हैं। जले हुए लकड़ी में हम क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, आग बुझ जाता है। तो पढ़ो अभी ये पैराग्राफ को। मैम हाँ सृष्टि पढ़ो, मैम मैं सृष्टि। पढ़ूं? नहीं सृष्टि मैं पढ़ो। पढ़ूं? मैम Cooling the burning substance below its ignition temperature. Another common method of extinguishing fire is to cool the combustible material using water. Water absorbs heat and cools down the combustible material below its ignition temperature. This stops it from burning. Some water also evaporates due to the heat. This water vapor can cover the combustible material like a blanket that cuts off the oxygen supply as well. However, water does not extinguish all types of fire, as water is a good conductor of electricity. If it should not be used to extinguish electric fires or oil fires. Since oil is less dense than water, it floats on top of the water and continues to burn. ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, कुछ समझ में आया? Yes, ma'am. तो क्या समझ में आया बताओ। मैम दूसरा मैम जो इसमें यही कॉमन समझ में आएगा, दूसरा कॉमन मेथड है हमारे आग को बुझाने का, वो यही है कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसको कूल डाउन करना, उसके इग्निशन हाँ, टेम्परेचर यस से। यस यस। यस मैम। तो देखो हम क्या कैसे कूल डाउन करें, पानी डाल के कूल डाउन करेंगे। यस मैम। बट यस आप मैम, अभी पानी ये पानी जहाँ डाल के पे कूल डाउन करें। क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट से आग लगती है, वहां पे हम पानी डालेंगे? नो मैम। तो मैम और बढ़ जाएगा। नो मैम। तो वहां पे क्या चार्ज हो जाएगा, मर जाएंगे सब बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि वाटर क्या Yes, है, ma'am. गुड कंडक्टर ऑफ गुड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां पे हम वाटर का इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे। ठीक है, इजी टॉपिक से सबको समझ में आ जाएगा, इसमें से कुछ है नहीं ऐसे। यस मैम। यस मैम। खुद को बचाना सबको पता है भाई, हमें खुद को कैसे बचाएं। नेक्स्ट क्या था, रिमूविंग द कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। हाँ ये भी है भाई, कंबस्टेबल यस सब्सटेंस मैम। को रिमूव कर दो, हटा दो। वो रहेगा तभी तो आग लगेगा। ठीक है, उसको ही हटा दो। ठीक है, ये मैम आग बुझाने का तीसरा तरीका है मैम ये। तीसरा तरीका है ये। तो क्या है ना, द थर्ड मेथड ऑफ द एक्सटिंग, क्योंकि जब हमें पता है कि 3 चीज की आवश्यकता पड़ती है कंबसन में, आग में। ठीक है, तो मैम 3 फ्यूल चीज। की आपूर्ति को दूर करना है। हाँ, तो ये क्या है ना, द थर्ड मेथड ऑफ द एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर इज टू रिमूव फ्यूल सप्लाई। ठीक है, ईंधन सप्लाई जो होती है उसको ही हम बंद कर देंगे। ठीक है, दिस वर्क्स यस वेल मैम। इफ द फायर इज कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ये क्या है ना, कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो होता है, जितना भी आपका क्या है, इलेक्ट्रिक यस। इक्विपमेंट समझते हो ना, चीजें यस जो मैम। होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो उनमें से जब आग लगती है तो हम क्या करें, उसको ही हटा देंगे, निकाल देंगे। ठीक है, गैस लीकेज हो गया, वी कैन एक्सटिंग्विश सच फायर्स बाय द स्विचिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर। हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे, इलेक्ट्रिक पावर को हटा दिए। जिस कारण से क्या हो रहा था, आग लग रही थी, किस कारण से ना, इलेक्ट्रिक करंट के लिए लग रही थी ना, तो उसी को ही हम बंद कर देंगे। ठीक है, उसको जब हम बंद कर देंगे तब बस हम सेफ हो जाएंगे। ठीक है, क्लोजिंग द मेन गैस वॉल्व टू कट ऑफ द गैस सप्लाई। और एक एग्जांपल हमने क्या लिया था ना, गैस लीकेज में जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे आप क्या करोगे, पानी वानी कुछ भी डालो वहाँ पे कुछ काम नहीं करेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या करना है ना, जहाँ से गैस सप्लाई हो रही है वहाँ पे जाके बंद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मेन गैस वॉल्व को आपको यस मैम। बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तब सोल्यूशन मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे एक फिगर आप देख रहे हैं ना, ये क्या है,
मैम फायर Fire एक्सटिंग्विशर। extinguisher. ये एक सिलेंडर है फायर नहीं? मैम फायर फायर कैन एक्सटिंग्विशर ऑल्सो बी एक्सटिंग्विश्ड यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। ये एक फायर एक्सटिंग्विशर है। ये कहाँ पे मिलते हैं बेटा देखने के लिए? Ma'am, public सार्वजनिक पर स्थानों पर, स्कूल्स मैम में, स्कूल में ऑफिस मिलते हैं, मॉल ऑफिस में, में और मिलते मार्केट हैं, हॉस्पिटल मॉल्स में, में। कार में भी छोटा सा इलेक्ट्रिशियन की शॉप पे। हाँ, तो इसका काम क्या है? फायर को आपको मैम ये एक्सटिंग्विश करना, मैम बुझाना। आग फायर को बुझाना। रोक फायर को देता है। कंट्रोल करना, फायर को रोक देता है। हाँ, तो ये भी बहुत वैरायटी के होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ये आपको इसलिए बुझा देते हैं क्योंकि इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हाँ, इनके अंदर